اس کا 2 باب 8 تا 11 تک مکاشفہ 2 باب 8 تا 11 ہے۔ مکاشفہ 2 باب 8 سے۔ اور سمرنا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھا کہ جو اول و آخر ہے اور جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں، مگر تو دولت مند ہے، اور جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہیں، ان کے لعن طعن کو بھی جانتا ہوں۔ جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر، دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے، جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے، جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور قبول کیے جانے پر خدا کی برکت۔ خدا کا شکر۔ آج ہم سمرنا کی کلیسیا کے بارے میں سیکھیں گے۔ خدا کا شکر ہے کہ یہ بھید ہم پر کھلا اور ہمیں پتہ چلا کہ ہم کس حال میں ہیں، رہیں گے اور کیا ہم پر گزرے گا۔ یوحنا عرب بڑی مصیبت میں، بڑے مشکلات میں، قید میں رہ کر اس خط کو لکھ رہے ہیں، جو سے کہا گیا کہ 7 کلیسیوں کے پاس لکھ کر بھیج دیں تاکہ لوگ اپنے بارے جانیں، آنے والی زندگی کے بارے جانیں۔ اس میں پورا ماضی، حال اور مستقبل کیا کر دیا گیا، بیان کیا گیا۔ آج یہ خط میرے اور آپ کے لیے، تاکہ اس پر غور کریں، اس کو زندگی کے اندر لیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ وہ دونوں ہی باتیں بیان کرتا ہے۔ جو خط لکھوا رہا ہے اس کی صفات بیان کرتا ہے کہ اس کی صفت کیا ہے، وہ ہے کون جو یہ خط کو آپ کو لکھوا رہا ہے، اور لکھا کیوں جا رہا ہے، آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کس دور میں ہیں، آپ کیسے اپنی زندگی گزاریں، جس کے لیے خدا کا بندہ یوحنا عرب کہتے ہیں کہ جو اول اور آخر ہے اور جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا، وہ یہ فرماتا ہے، جو زندہ ہوا وہ فرماتا ہے۔ خدا ہماری فطرت کے بارے جانتے ہیں، ہمارے بول چال کے بارے جانتے ہیں، جو ہم پر آنا ہے اس کے بارے بھی جانتے ہیں۔ ہلیلویا۔ کیونکہ وہ دلوں اور گردوں کو جانچنے والا ہے، وہی ابتدار اور انتہا ہے۔ اس سے آج یہ بات میرے اور آپ کے ساتھ ہو رہی ہے، میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں مگر تو دولت مند ہے۔ ہلیلویا۔ ہلیلویا۔ کہتا میں تیری مصیبت، تو بہت مصیبت میں ہے، مشکلات میں ہے اور غربت کی زندگی گزار رہا، مگر تو دولت مند ہے۔ کیوں دولت مند ہے؟ اس لیے کہ تیرے پاس خدا کا زندہ کلام ہے، اور کلام کی دولت بڑھ کر ہے۔ کبھی بھی اس کلام سے ہم اپنی زندگی کو بدلتے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ بائبل، یہ کلام لوگوں کی زندگیاں کیا کر دیتی ہیں، بدل دیتی ہیں۔ اس سے تو دولت مند ہے کیونکہ تو زندہ خدا پر ایمان رکھتا،
और तू कलीसिया है, तू मेरे चुने हुए लोग हो। ये जो दुनिया की दौलत है, ये बंगले, कारें, कोठियां एक दिन बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, एक दिन खत्म हो जाएंगे, और दौलत हवा के पंख लगाकर उड़ जाती। दौलत ढलते हुए साए की मानत है। इससे आज किसी के हाथ में है, कल किसी के हाथ में है। इसकी बड़ी स्पीड है। लेकिन कुरान कहता है जमीन की दौलत तो एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन जो दौलत आपके पास है, खुदा का कलाम है, खुदा की कलीसिया हो, उस नजात दहिंदा को जो मरकज जिंदा उसको मानते हो, इससे तुम अब्दी बादशाह में वो पाओगे, ना रोना, ना दांतों का पीसना, ना हो नाला, ना दर्द, ना तकलीफ, ना दुख, ना डिस्टर्बिंग, कुछ नहीं होगा। माँ मेरी और आपकी दौलत मंदी हो, और सोना हमारे पाँव के नीचे। हालेलुया। हालेलुया। इससे कहता तुम दौलतमंद। और जो अपने आप को यहूदी कहते रहे नहीं, बल्कि शैतान की जमात हैं, उनकी लान तान को भी जानता हूँ। वे ये तो कहते हैं मसीह हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम मसीह को कबूल कर चुके, और अपनी फितरत नहीं बदलते, अपनी मैं को नहीं बदलते, और अपनी जिंदगी को बदलो नहीं लाते। और ये लफ्ज सिर्फ खुदाम के लिए, मैं हूँ सो हूँ। इंसान जब अपनी मैं में आता है, वही जुआबाजी, वही शराब नोशी, वही बुराई, वही नाच रंग, वही हद तक की बुराई में मुक्ता, वही लूटना, वही डाका डालना, और हद तक की बुराई में कहता ये मसीह नहीं हो सकते, क्योंकि मसीह की ये तालीम नहीं है। बस अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, और दूसरों के लिए बरकत की क्या मांगो, दुआ। हद तक की एबजई छोड़ दो, हद तक की बुराई छोड़ दो, जिससे ये अपने आप को बड़ा करना चाहता, पहले छोटा बनकर देखे, फिर वो क्या किया जाएगा, उसकी बादशाह में बड़ा किया। हालेलुया। हालेलुया। सो इस तरह से मैं तेरी गरीबी को जानता हूं, मगर तू दौलत मानता। उन लोगों को भी जानता हूं जो अपने आप को ये तो कहते हैं कि हम मसीह हैं, हम क्रिश्चियन हैं जी, हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, लेकिन क्या है, शैतान की जमात है। जादूगरी नहीं छोड़ते, बहुत पर जादूगरों के पास जाना, बहुत कुछ करना। सो इस तरह से शफा देना कोई बात नहीं है, बदरूहों का निकल जाना कोई बात नहीं है, लंगड़ों को चला देना कोई बात नहीं है, अगर आप और मेरी जिंदगी चेंज नहीं तो देख लो जाके वो सारा वो भरा हुआ है मार्गरेट का बाजार, गैर कौमी आकर वहाँ कितनी औरतें जो आकर जुमेरात को दुआ से कर, लेकिन वो जिंदगियाँ बदल जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। ये नहीं, मैं तुम्हें इसलिए भेजता हूँ कि जाओ सारी कौमों को क्या बनाओ, शागिर्द बनाओ, और उनको बाप और बेटे और उनको 10 के नाम से बपतिस्मा। जो ईमान लाए क्या पाएगा, नजात पाएगा। जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। इससे शैतान की, उनकी लान तान को भी जानता हूं। लान तान क्या है, ऐसे लोगों से आखिरत में क्या है, ए मलाउनो मेरी तुमसे कभी वाकफियत थी नहीं थी। ये लफ्ज मलाउन का लफ्ज जो जमीन पर पहली दफा बोला गया, बागे अदन में बोला गया शाम के लिए, तो सब दहशती जानवरों में क्या ठहरा, मलाउन। तो ये लोग भी क्या होंगे, मलाउन, जो कभी उसकी बादशाह में दाखिल न हो। इससे मैं उनकी लान तान को भी जानता हूं। जो दुख तुझे सहने उनसे खौफ न कर, देख इब्लीस तुम में से बात को कैद में डालने को, ताकि तुम्हारी क्या हो, आजमाइश। दुख, मैंने कहा था पहले ही खुदा हमारी लाइफ के बारे जानते हैं, एक एक बात के दुख भी सहने है, मुश्किल से मुसीबत से भी गुजरना। इवन के कहते कि इब्लीस तुमको कैद में डाल। अब देख लें
यीशु मसीह जैसे आसमान पर गए, शागिर्दों ने खिदमत को शुरू किया और शागिर्दों के लिए कैद, क्या कैसी कैसी कैद, किस तरह की कैद में वो मुक्त रहे, खाट में ठोक दिए गए, बेड़ियों में जंजीरों में बांध के गए। और यूहन्ना अर्ब का पितमस के जजीरा की कैद में, यहाँ कैदी जाते तो हैं पर कैदी वापस नहीं। उस मुसीबत में इस खत को लिखे। फिर क्या दुखनी से आरे में चीर दिया गया, उल्टी सलीब छुरा घोंप दिया गया, बकाकर संसार कर दिया गया। हम पहले से जानते कि ये तुम पर खौफ न कर, इब्लीस तुमको आजमाएगा, बहुत कुछ तुम्हारे लिए करेगा, बात को कैद में डालेगा ताकि तुम्हारी आजमाइश हो। 10 दिन तक मुसीबत ठाओगे, जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूं। हालेलुया, हालेलुया। जान देने तक। मरीज कह देगा तेरी मौत हो जाएगी, तू भूखा मर जाएगा, तेरे को आटा दाल चीनी नहीं मिलेगी, तू ऐसे करेगा, कहता डर जा। कितनी हद? 10 दिन तक। इससे आगे इसकी कोई कुव्वत काम नहीं करे। 10 दिन तक मुसीबत ठाओगे, जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूं। यह है जिंदगी, अब्दी जिंदगी, हमेशा की जिंदगी, अब्दी बादशाही, हमेशा की बादशाही उसमें जिसके कान वो सुने कि रूह कलीसियों से क्या फरमाता है, जिसके कान वो सुने कि रूह कलीसियों के लिए क्या फरमाता है। इस बात को सुने, कान लगा कर सुने, अपना कान रूहानी कान लगाएं। जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान ना पहुंचेगा। जो गालिब आए दूसरी मौत, इस मौत का तो डर ही नहीं। ये मौत सिर्फ बदन को आती है, बदन को डेड करती है, और रूह और जान खुदाम के पास। इससे दूसरी मौत क्या है? बड़ी भयानक मौत है। यशायाह की किताब के 66 बाब के आखिरी आयतों को पढ़े, लोग उनकी लाशों को देखेंगे और वो पड़े होंगे और उनका कीड़ा भी ना मरेगा, ना उनकी आग बुझेगी। सांस भी चलता होगा लेकिन डेड हो जाए। वहां रोना और दांतों का नुकसान ही नुकसान है। जीते जी इंसान को जरा सी कोई चोट लग जाए तकलीफ होती है। बहन को पकाते हुए हंडिया की या रोटी की बाप लग जाए तो थोड़ी देर तक भी, तो उस सेक का क्या होगा जो आग और गंधक की झील है। इससे कलीसिया को, उन लोगों को जो खुदा के करीब है, जो खुदा को जानते हैं, उसकी बादशाही के लिए मुंतज़िर है, उनको दूसरी मौत से नुकसान नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। इससे आज मैं रब इस खत को अपनी जिंदगी के अंदर लें और हमेशा की जिंदगी पाएं और अब्दी बादशाही में के लिए तैयार रहें और दौलतमंद बन जाए। उसके कलाम को जिंदगी में लें ताकि क्या बन जाए? दौलतमंद बन जाए और हमेशा की जिंदगी। हम सब को इस पर शुक्र।